क्लैरिटी करेक्टर ये एक बहुत ही मेक्स हर डायमंड को बहुत यूनिक बनाती है, स्पेशली इफ़ दे हैव यूजुअल अनयूजुअल शेप। ये डायमंड शेप इंक्लूजन दिखाती है मैग्नीफाइड 45x, जो बनाती है एक डायमंड को irresistible to romance. Clarity characteristics do more than tell how rare and valuable a diamond is. Clarity character do more ज़्यादा करती है और बताती है कितना रेयर और वैल्यूबल एक डायमंड है. As Adam explained, they also make every diamond unique. ये हर डायमंड को यूनिक भी बनाता है. It's extremely unlikely that two people have identical fingerprints. ये ऐसा ही है जैसे दो लोगों के कभी fingerprints मैच नहीं होते, or that two snowflakes are exactly alike. It's just as unlikely that two diamonds have the same clarity character in identical location. हर दो डायमंड का क्लैरिटी करेक्टर यूजुअली आइडेंटिकल होता है. इट्स जस्ट एज अनलाइकली, ये ऐसा ही अनलाइकली है जैसे दो डायमंड्स का सेम क्लैरिटी करेक्टर हो एक आइडेंटिकल लोकेशन पे. नाउ सेम the next section will introduce you to two kinds of clarity character you will like to encounter. So diamond formation and clarity. You have already learned that small crystals can become trapped in a diamond when it's forming. You have already learned that small crystal, आपने देख लिया, small crystal can become trapped in a diamond when it's forming. There are also some other types of clarity character that can occur during the diamond formation. कुछ और clarity character भी दिख सकते हैं during diamond formation. Sometimes a crystal grown, कई बार एक crystal मिल सकता है. It develops irregularity in a atomic structure. ये irregularity बताता है atomic structure में. When that happens, it forms a clarity character called graining. ये जब डेवलप होता है इसे हम बोलते हैं क्लैरिटी को बोलते ग्रेनिंग. ग्रेनिंग often looks like fainting lines and streaks. ये ऐसा दिखता है fainting lines और streaks की तरह. Sometimes the lines are parallel and sometimes they interact. कई बार lines parallel होती है और कई बार ये intersect करती हैं. Clarity characteristics जो है that can develop during or after formation is a break. Clarity character जो है वो develop होता है during और after formation of a break. develop होता है उस टाइम पे या बाद में break के. दो तरह के breaks होते हैं. cleavage होता है और दूसरा होता है fracture. cleavage जो होता है एक is a break parallel to the weakest direction of gem structure. ये जो है break होता है parallel to the weakest direction of the gem structure. It sometimes have a step like appearance. उसका कई बार step like appearance होता है. Fracture is a break in any other direction. Fracture जो है वो एक होता है cleavage. ये होता है ब्रेक पैरेलल करता है द वीकेस्ट डायरेक्शन ऑफ द जेम स्ट्रक्चर. और एक होता है फ्रैक्चर. फ्रैक्चर जो होता है ब्रेक इन एनी अदर डायरेक्शन. इन द ट्रेड क्लीवेजेस और फ्रैक्चर्स जनरली हम उसे बोलते हैं फेदर्स.
That's because they are white and feathery appearance. वो white होते हैं और feathery appearance होते हैं. Whitish lines diamonds पे उसे हम बोलते हैं internal graining. It results from irregularity that develop during growth 10x. Feather जो होता है collective term है for diamond cleavage and fracture. ये एक collective term है diamond cleavage और fracture के लिए. सबसे most damaging break occur along the weakest direction in the crystal structure. ज़्यादातर damaging breaks occur होते हैं weakest direction of the crystal structure, especially if those breaks pass through the griddle or occur near point or corners. A hard blow in the wrong place can chip. एक हार्ड ब्लो रॉन्ग डायरेक्शन में वो चिप कर सकता है या क्रैक कर सकता है डायमंड को. There's less damage once a stone is mounted. Less damage होता है अगर स्टोन जो है वो माउंटेड है. Though diamonds are subject to extreme stress when they are polished and set. If a diamond survives that, it can probably survive normal wear. अगर उसने वो survive कर लिया तो normal wear तो survive कर ही लेगा. Clarity grading factors. 5 factors जो determine करते हैं overall effect of characteristics on a clarity grade. Most of them have to do with how readily the grader can see the character. 5 factors. First is the size, second is number, third is location, position and relief. So size, one is size, other is the number, third is location, relief and nature. The effect of size is obvious. Large inclusions जो है वो effect करते हैं clarity more than same ones. ज़्यादा बड़े inclusions वो effect करते हैं clarity को than same ones. The number of inclusion is also important. Number inclusion का वो भी important रहता है, but it's not just the matter of counting them, but वो मैटर नहीं होता जस्ट काउंटिंग का. स्टोन कैन हैव मैनी टाइनी इंक्लूजन्स एंड स्टिल बी हाई ऑन क्लैरिटी स्केल. एक स्टोन के बहुत सारे टाइनी इंक्लूजन्स होते हैं बट उसकी क्लैरिटी ज़्यादा हो सकती है ऑन द क्लैरिटी स्केल. 1 or 2 ऑफ द लार्जेस्ट इंक्लूजन यूजुअली सेट द ग्रेड. 1 या 2 इंक्लूजन यूजुअली सेट करते हैं ग्रेड को. Also, an inclusion might be small and in an inconspicuous place. Inclusion छोटा हो सकता है और एक inconspicuous place पे भी हो सकता है, but it reflects the pavilion facet. लेकिन वो reflect करता है pavilion facet को. It looks like many inclusions, not just one. When this happens, it's called a reflector. जब ये होता है उसे रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं. रिफ्लेक्टर जो है वो लोअर करता है क्लैरिटी ग्रेड को मोर देन सिमिलर नो रिफ्लेक्टिंग इंक्लूजन. इंक्लूजन लोकेशन जो है वो इफेक्ट करती है उसकी विजिबिलिटी को. कटर कॉल द एरिया राइट अंडर द टेबल द हार्ट ऑफ द स्टोन. इंक्लूजन्स जो हैं आर मच मोर विजिबल there then they are under the brazil facet or near the griddle. Relief means the contrast between the inclusion and the diamond. Inclusions that are very bright, dark or colored are easier to see. Inclusions जो bright होते हैं, dark होते हैं और colored होते हैं वो आसानी से देखे जा सकते हैं. So they
have a greater impact on clarity grade than transparent inclusions. Nature refers to the type of characteristics and its potential effect on the diamond. उसका potential effect diamond पे देखते हैं. Nature refers to the type of character. Inclusions जो होते हैं, inclusion location, when this happens it's called reflector. जब ये होता है उसे बोलते हैं reflector. Reflector जो है वो lower करता है clarity grade को more than similar not reflecting inclusion. Reflector जो है वो lower करता है clarity grade को more than similar non reflecting. जो reflect नहीं हो रहे थे inclusions उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है. एंड inclusions location also affects its visibility. inclusion location जो है वो भी affect करती है उसकी visibility. Cutter call the area right under the table the heart of the stone. Inclusions are much more visible there than they are under the bezel fact or near the griddle. Relief means the contrast. रिलीफ का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में. इंक्लूजन एंड द डायमंड. इंक्लूजन दैट आर वेरी ब्राइट डार्क और कलर्ड आर ईजियर टू सी. इंक्लूजन जो डार्क होते हैं कलर्ड होते हैं वो ईजीली आप देख सकते हो. सो दे हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द क्लैरिटी ग्रेड देन ट्रांसपेरेंट इंक्लूजन्स. तो उनका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है देन द ट्रांसपेरेंट इंक्लूजन्स. Nature refers to the type of characteristics and its potential effect on the diamond. For example, an optical irregularity in the crystal structure would have far less impact on clarity than a physical break in the diamond. Nature refer करता है type of characters और potential effect diamond पे. For example, एक optical irregularity क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वुड हैव फार लेस इम्पैक्ट ऑन द क्लैरिटी. उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्लैरिटी पे लेस इम्पैक्ट होगा देन अ फिजिकल ब्रेक इन द डायमंड रादर देन अ फिजिकल ब्रेक. वेरी डीप फेदर्स दैट एक्सचेंज फ्रॉम क्राउन टू द पेविलियन पोज ड्यूरेबिलिटी कंसर्न एंड कैन लोअर द ग्रेड. ड्यूरेबिलिटी कंसर्न पे आ जाता है और उसकी लोअर कर सकता है ग्रेड को. साइज इन्फ्लुएंस जो इफ़ेक्ट करता है ऑफ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑन अ डायमंड क्लैरिटी ग्रेड. साइज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमंड क्लैरिटी ग्रेड. दिस डायमंड कंटेन्स सम फेयरली लार्ज क्रिस्टल्स. इस डायमंड में काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं. The number of inclusions makes a difference in the clarity grade. जितने ज़्यादा inclusions होंगे वो clarity grade पे effect करेंगे. This diamond has several 20x. The position of the feather under the crown facet was a factor in this diamond clarity grade. A lower clarity grade would result if the same feather was located under the table. The type or the nature of inclusion is an important factor for a diamond clarity. टाइप और नेचर ऑफ इंक्लूजन जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डायमंड क्लैरिटी में. इस डायमंड में बहुत बड़े बड़े वाइट फेदर्स हैं जो कि थ्रेटन करेंगे इसकी ड्यूरेबिलिटी को. तो इसीलिए इसको मिलता है लो क्लैरिटी ग्रेड 10x. बहुत सारे हाई रिलीफ क्रिस्टल इजी होते हैं देखने में बिकॉज उसके कलर की वजह से. अगर ये कलरलेस होते तो डायमंड ग्रेड इसका हायर होता. की कॉन्सेप्ट. एक स्किल्ड कटर जो है वो कैन ऑफन इम्प्रूव कर सकता है क्लैरिटी डायमंड की. कैसे कर सकता है.
एलिमिनेट और हाइडिंग क्लैरिटी करेक्टर, वो एलिमिनेट कर सकता है और हाइड कर सकता है क्लैरिटी करेक्टर को। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? इंडिविजुअल और कंपनी जो कट करती है, पॉलिश करती है डायमंड्स और कलर्ड स्टोन्स को, उसे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। क्लैरिटी करेक्टर जो है वो बनाता है डायमंड को यूनिक, स्पेशली इफ़ वहाँ पर कुछ इफ़ दे हैव अनयूजुअल शेप। Diamond shaped inclusion show magnified 45 times can make the diamond irresistible to romance. Diamond shaped मतलब हार्ट शेप डायमंड जो है वो दिखा सकता है रोमांस को, इररेजिस्टिबल रोमांस को। तो द कटर कॉन्ट्रीब्यूशन, कटर ऑफन कॉल्ड मैन्युफैक्चरर, कटर को ऑफर मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। वो इन्हांस करता है नेचुरल ब्यूटी डायमंड की, उसके शेप को और पॉलिश को। वो एलिमिनेट करता है कुछ क्लैरिटी करेक्टर्स, कैसे? उसको कट करके पॉलिश करके। समटाइम्स दिस क्रिएट्स अ एक्स्ट्रा फेसेट, कई बार ये एक्स्ट्रा फेसेट क्रिएट कर सकता है। इफ़ अ करेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अगर एक करेक्टरिस्टिक्स एलिमिनेट नहीं हो सकता, द कटर कैन समटाइम पोजिशन इट सो इट्स वेरी विजिबल। तो जो कटर है कई बार ऐसे पोजिशन कर सकते हैं सो इट्स वेरी विजिबल। नाउ ड्यूरिंग द ब्रूटनिंग स्टेज, राइट, जो कटर शेप है, कटर शेप से राउंड एंड राउंडेड शेप, कटर जो है वो शेप करता है राउंड और राउंडेड शेप में डायमंड बेसिक आउटलाइन टू प्रिपेयर इट फॉर फेसेटिंग। डायमंड की जो बेसिक आउटलाइन है टू प्रिपेयर फेस्टिंग, मैनी मॉडर्न ऑटोमेटेड ब्रूटिंग मशीन मेक्स यूज़ ऑफ लेज़र टेक्निक। अब काफ़ी सारी न्यू जो मशीनरी आ गई है वो लेज़र टेक्निक यूज़ करती है। कटिंग और पॉलिशिंग प्रोसेस जो होता है कैन ऑल्सो क्रिएट क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स। कटिंग और पॉलिशिंग प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स फॉर राउंड्स एंड राउंडेड शेप। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज़ कटिंग प्रोसेस। राउंड और राउंडेड शेप के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कटिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप होता है कटिंग प्रोसेस में इज़ टू फॉर्म द डायमंड बेसिक्स फेस अप आउटलाइन। वो फॉर्म करता है डायमंड बेसिक फेस अप आउटलाइन, जिसे बोलते हैं ब्रूटिंग, राउंडिंग अप एंड ग्रिड लाइनिंग। ब्रूटिंग जो होता है ये basically forming the basic face up outline of a round or a rounded shape diamond ताकि to prepare the faceting। आज की डेट में टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो हैंडल कर सकती है, बेसिकली ब्रूट कर सकती है डायमंड को ऑटोमेटेड मशीन्स पे। सो मैं बहुत सारी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है लेज़र टेक्निक, लेकिन काफ़ी सारे डायमंड्स अभी भी ब्रूट होते हैं ट्रेडिशनल वे से, जैसे बाय यूजिंग माउंटिंग द डायमंड ऑन द लॉथ एंड शेपिंग इट विद द ग्रिडल विद अनदर डायमंड। दूसरे डायमंड यूज़ करके मोस्टली काफ़ी बार लेज़र टेक्निक ही यूज़ हो रही है, लेकिन ट्रेडिशनल वे भी यूज़ होता है जिसमें माउंट किया जाता है डायमंड को लॉथ पे और शेप किया जाता है उसकी ग्रेडल विद अनदर डायमंड। अनलेस दिस इज़ डन केयरफुली, जब तक ये केयरफुली नहीं होता, ब्रीडिंग कैन रिजल्ट। बियर्डिंग कंसिस्ट करती है स्मॉल फेदर्स को दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्रिड इनटू द स्टोन, जो कि दिखेंगे। ब्रूटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग द बेसिक फेस अप आउटलाइन ऑफ अ राउंड और राउंडेड शेप डायमंड टू प्रिपेयर द फेसेटिंग।
अनलेस दिस इज़ डन केयरफुली, जब तक ये केयरफुली नहीं होगा। बियर्डिंग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फेदर्स। बियर्डिंग में क्या होता है, स्मॉल फेदर्स होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्रिडल इनटू द स्टोन। और कटर क्या होता है, कटर हु वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर retaining the maximum possible weight and determining from the rough while leaving part of the crystal original surface on the fashion diamond. The area where the original surface show is called natural. Sometime एक feather break हो सकती है away and leave a hole or a space called cavity. कई बार एक feather break हो सकता है and leave कर सकता है एक hole or space called cavity. Cavity can also result when a crystal that reaches the surface falls out and it removed during polishing. A chip जो होता है वो एक राउंडेड शैलो ओपनिंग होती है ऑन द फेसेटेड जंक्शन. ये यूजुअली it usually the result of damage that occurs during and after the fashioning. पॉलिश लाइंस जो होती हैं वो फाइन होती हैं. पैरेलल grooves and rides that are created during the manufacturing process. Unlike the grain lines, polish lines don't extend past facet junction. Polish line might appear on the adjusted facet, but because each facet is polished individually, the line run in different direction. Now, inclusions and blemishes define करते हैं.